لاہور میں پولیس کی کارروائی، موٹر سائیکل چوری میں ملوث 2 ملزمان گرفتار، قبضے سے موٹر سائیکل، موبائل فونز اور نقدی برآمد۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ توکی میں غیر قانونی ایل پی جی اسٹیشن مالکان کی شامت آ گئی، مختلف علاقوں میں سول ڈیفنس کی کارروائی، متعدد دکانوں کے مالکان کو حراست میں لے لیا، مقدمہ درج۔ سول ڈیفنس ٹیم کا کہنا ہے کہ غیر قانونی گیس ریفلنگ کرنے والوں کے خلاف تحصیل بھر میں آپریشن جاری رہے گا۔ پاک پتن میں مکان کی چھت گرنے سے 2 خواتین اور 3 بچوں سمیت 5 افراد زخمی، ریسکیو ٹیمز نے زخمیوں کو ملبے سے نکال کر اسپتال منتقل کیا، زخمی ہونے والے تمام افراد کی حالت خطرے سے باہر۔ مر کر بھی سکون نہ آیا، لاہور کے علاقے کاہنہ میں قبضہ مافیا نے قبرستان پر قبضہ کر لیا، مکانات کی تعمیرات جاری، اسسٹنٹ کمشنر نے آنکھیں بند کر لی۔ پنجاب کے اسکولوں میں بچوں پر تشدد کا سلسلہ نہ رک سکا، خانیوال میں سبق یاد نہ کرنے پر 4تھی جماعت کے طالب علم پر لیڈی ٹیچر کا بدترین تشدد، اہل خانہ کا احتجاج، پولیس سے ٹیچر اور اسکول انتظامیہ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ گجرانوالہ میں پولیس کی کارروائی، کتوں کی لڑائی پر جوا لگانے والے 17 افراد کو حراست میں لے لیا، مقدمہ درج۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا، گندگی کے ڈھیر سے مسافر پریشان، ریلوے ٹریک پر جگہ جگہ گندا پانی اور بدبو نے سفر مشکل بنا دیا۔ شیخو پورہ گجرانوالہ روڈ کئی عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، شہریوں کو کئی گھنٹے ٹریفک جام میں پھنسا رہنا معمول بن گیا۔ کوٹ ادو کے علاقے دائرہ دین ٹاؤن کمیٹی میں کئی دن سے کچرا نہ اٹھانے اور علاقے میں تعفن سے بیماریاں پھیلنے لگی، علاقہ مکین انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج، حکومت مخالف نعرے لگائے۔ ہب میں بلوچستان اسپورٹس بورڈ کے تعاون سے لسبیلا ڈسٹرکٹ گیمز کے مختلف گراؤنڈز میں کرکٹ، فٹ بال، جمپنگ اور رننگ کے مقابلے جاری، مقابلے میں صوبے سے کھلاڑیوں کی شرکت۔ اور معروف رومانوی داستان سسی پنو کی مرکزی کردار، سسی کا آبائی شہر خستہ حالی کا شکار، سینکڑوں برس پرانی عمارتیں آج بھی فن تعمیر میں اپنی مثال آپ، سسی کی جائے پیدائش کی جگہ اور کنواں محکمہ آثار قدیمہ کی نااہلی کا منظر پیش کرنے لگا۔ شہ سرخیاں اپنے جانی شہر نامے کا کریں گے باقاعدہ آغاز، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ شہر نامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے، سب سے پہلے بات کر لیں گے راولپنڈی کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی میں پولیس نے کارروائی کر کے 2 کمسن بچوں کے قتل اور زیادتی کے واقعات میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پنڈی سی پی او آفس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سی پی او ایس این یونس نے بتایا کہ گرفتار ملزم نے نوید اور عریب کو پتنگ دلانے کے بہانے اپنے ساتھ لے کر گیا اور دونوں کو بدفعلی کے بعد قتل کر دیا۔ اللہ کی مہربانی سے راولپنڈی پولیس کو اللہ تعالیٰ نے آگے مہربانی کی، ہم ملزم تک پہنچ گئے اور ملزم دے رہا۔ انہوں نے بتایا کہ ملزم نے واقعے کے بعد اپنی والدہ کو اس بارے میں آگاہ کیا، مگر والدہ نے اس بارے میں پولیس کو آگاہ نہیں کیا۔ سی پی او نے کہا کہ واقعے کے بعد پولیس نے ٹیکنیکل بنیادوں پر کیس کو حل کیا، تفتیش میں شامل تمام افسران تعریف کے مستحق ہیں۔ ہم اپنی پوری محنت یا فشانی سے یہ کام کر رہے ہیں، ہم کسی کو دھوکہ دہی میں نہیں انوالو، کوئی لپ سروس جھوٹ پہ نہیں ہم انوالو،
अल्हम्दुलिल्लाह यही सारी पुलिस है, यही सारे लोग हैं और सबकी कारकर्दगी आपके सामने है। जिस तरह मर्जी आपने रावलपिंडी पुलिस की कारकर्दगी को जांचना जांची, हम हाजिर हैं। चाहे वो क्राइम प्रिवेंशन में हो, चाहे वो क्राइम डिटेक्शन में हो, इन्वेस्टिगेशन में हो। मैंने ये नहीं कहा कि लो जी हमने ऐलान कर दिया कि हमने सब ठीक है। उनका मजीद कहना था कि वाकई के बाद अहले खाना की जानिब से सख्त एहतजाज भी किया गया। हम उनको बताना चाहते हैं कि पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, तफ्तीश जारी है। मजीद इस हवाले से जो भी बात सामने आई उसे मीडिया और अहले खाना से शेयर करेंगे। अब रुख करेंगे लाहौर का। आपको बताएं कि लाहौर में पुलिस ने कार्रवाई करके मोटरसाइकिल चोर गैंग के 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके कब्जे से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद कर लिया। आपको बताएं लाहौर के इलाके शात बाग में पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्विस 2 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में गैंग का सरगना सुलेमान उर्फ 16 और इसका साथी उमैर शामिल हैं। मुलजिमान के कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें, 7 मोबाइल फोन्स, नकदी और दीगर अशिया भी बरामद कर ली गई। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। आपको बताएं पत्तोकी में गाड़ियों में गैर कानूनी तौर पर एलपीजी भरने वाले एलपीजी स्टेशन के खिलाफ कार्रवाई, मुत्तादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। आपको बताएं डीसीओ कसूर अजहर हयात की हिदायत पर सिविल डिफेंस की टीम ने पत्तोकी में गैर कानूनी एलपीजी की गाड़ियों में रीफिलिंग करने वालों के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करके दुकानदार तारिक मोहम्मद असलम समेत मुत्तादिद अफराद को हिरासत में लेकर थाना सिटी पत्तोकी में मुकदमा दर्ज कर दिया और साथ ही साथ दुकानें भी सील कर दी। आपको बताएं कि सिविल डिफेंस टीम का कहना है कि गैर कानूनी गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ तहसील भर में ऑपरेशन जारी रहेगा। अब कुछ बात कर लेंगे पाकपतन के हवाले से। आपको बताएं कि पाकपतन में मकान की छत गिरने से 2 खवातीन और 3 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम्स ने पहुंचकर जख्मियों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पाकपतन नवाही गांव में मकान की छत गिरने से 8 साला मोहम्मद अकमल, मोहम्मद लुकमान, मोहम्मद अब्दुल्ला, ईमान फातिमा और दीगर जख्मी हुए, जिन्हें रेस्क्यू एहलकारों ने मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टर्स के मुताबिक जख्मी होने वाले तमाम अफराद की हालत खतरे से बाहर है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं लाहौर के इलाके काहना में कब्जा माफिया ने कब्रिस्तान पर कब्जा करके घरों की तामीरात का आगाज कर दिया और साथ ही साथ असिस्टेंट कमिश्नर ने इस हवाले से अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। मजीद अहवाल जानते हैं सैयद माजिद अली शाह से। जी माजिद, कब्जा माफिया के इकदामात के हवाले से मजीद आगाह कीजिए। यहाँ तो कहते हैं मर जाएं, मर के भी सुकून ना मिला तो कहाँ जाएंगे। मेरी मुराद वो कब्जा माफिया है जो कब्रों को भी नहीं छोड़ रहे। आए रोज देखने में आता है कि लाहौर के इलाका काना में मुख्तलिफ कब्रिस्तानों के अतराफ में बाउंड्री लाइन के साथ साथ लोग घरों की तमीर करते हैं और कब्रों को बसमार कर कर आए रोज यहाँ पर ऐसे मामला देखने को मिलते हैं। जी इस वक्त मैं धूपसड़ी के कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। ये काना का मरकजी कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान के अतराफ में अगर बात करें तो लोगों ने बासर कब्जा माफिया ने अपने घर बना रखे हैं और बड़ी तेजी से घर बनाए जा रहे हैं। अगर बात करें इंतजामिया की जानिब से तो मतअद्दिद पुलिस की जानिब से भी कार्रवाई अमल में आई, मुतलका टाउन इंतजामिया की जानिब से भी, एसी की जानिब से भी कार्रवाई अमल में आई, लेकिन अफसोस के भरपूर कार्रवाई ना हो सकी। इन घरों को बसमार नहीं किया गया। अगर बात करें आला अदलिया की तो हाई कोर्ट के नोटिस के बाद पंजाब और पूरे पाकिस्तान भर के कब्रिस्तानों के कब्जे बागजार करवाए गए थे, लेकिन अफसोस के अगर काना की बात करें तो यहां पर किसी नवैयत का कोई अमली इकदामात नजर नहीं आया। काना के इलाका लखो की जेडू तूड़ वरैच थे पंजू शहजादा और धूपसड़ी के इलाका में कब्रिस्तानों के अतराफ में लोग तेजी से मकान बनाने में मसरूफ अमल हैं और लोग मकानों की तमीर कर रहे हैं और लोग कब्रों को बसमार कर कर मकान बना रहे हैं और तेजी से यह काम जारी है। लेकिन अफसोस के हुकूमत की जानिब से कोई नोटिस नजर नहीं आ रहा। तरीके इंसाफ ने इंसाफ के नाम पर वोट लेकर हुकूमत तो कायम कर ली, लेकिन अफसोस के बर वक्त इंसाफ फराहम नहीं किया जा रहा। जी बहुत शुक्रिया सैयद माजिद अली शाह, आपने तफसीलन आगाह किया।
اب کچھ بات کر لیں گے رحیم یار خان کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان میں کم سن بچے سے گورنمنٹ اسکول کے گارڈ کی مبینہ بد فعلی کی شکایت پر اسکول انتظامیہ اور گارڈ نے اہل خانہ پر تشدد شروع کر دیا. گورنمنٹ اسکول رحیم یار خان میں گارڈ نے بچے کو بد فعلی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی. شکایت کرنے پر گارڈ اور اسکول ٹیچر نے متاثرہ بچے کی بھابھی پر تشدد کیا. تشدد کا نشانہ بننے والی خاتون صبا نے بتایا کہ گورنمنٹ اسکول ٹیچر اسماعیل اور گارڈ شعیب نے تشدد کا نشانہ بنایا اور کپڑے پھاڑ دیے. انہوں نے بتایا کہ اسکول کے گارڈ نے بچے کو بدفعلی کی نیت سے کمرے میں لے کر گیا. بچے کے شور کرنے اور ہمارے وہاں پہنچنے پر گارڈ اور اسکول ٹیچر مشتعل ہو گئے. پولیس کو اطلاع کے باوجود کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی. دوم کلاس میں پڑھتا ہوں. میرے اسکول کا نام گورنمنٹ پرائمری اسکول وائی رحیم ہے. میں بریک کے ٹائم باہر جا رہا تھا. مجھے گارڈ نے بلایا, کہہ رہا تھا کام ہے. میں گیا تو وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگ گیا. وہ کہہ رہا تھا میں شور مچانے لگ گیا. اس نے مجھے پکڑ کے تھپڑے ماری, اس مکے مارے. وہ وہاں پہ لڑکا کھڑا تھا ہمارا ہمسایا, وہ ہمارے گھر جا کے اس نے بتایا سارا. وہ لڑکا کیسے کھڑا تھا وہاں پر؟ وہ وہاں پہ پڑھتا ہے. اس نے جا کے گھر میرے بتایا سارا. سر نے کہا اگر تم نے اپنے امی ابو کو بتایا تو. سر کون ہے بیٹا آپ کا؟ سر اسماعیل. اس نے کہا اگر آپ نے اپنے امی ابو کو بتایا تو میں نے آپ کا نام کاٹ دینا ہے اسکول سے. اس لیے میں نے امی ابو کو نہیں بتایا. بعد میں میری بہن اور بھائی آئے, ان کو میں نے بتایا تو وہ میری بہن کو گالیاں نکالنے لگ گیا سر, اور بھائی کو دھکے دینے لگ گیا. اسکول کا گیٹ بند کر دیا, میرا بیگ باہر پھینک دیا انہوں نے. اب کچھ بات کر لیں گے خانیوال کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ خانیوال میں سبق یاد نہ کرنے پر چوتھی جماعت کے طالب علم پر لیڈی ٹیچر نے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا, جس سے اس کی حالت غیر ہو گئی. خانیوال کے نواحی علاقے نواں چوک کے نجی اسکول میں زیر تعلیم چوتھی جماعت کے طالب علم علی رضا کو سبق یاد نہ کرنے پر لیڈی ٹیچر نے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا. تشدد کے باعث طالب علم علی رضا کی حالت خراب ہونے پر اسے فوری طور پر DHQ اسپتال منتقل کیا گیا. واقعے کے بعد طالب علم کے والدین نے ضلع انتظامیہ سے حکومت پنجاب کے دعوے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت اسکول انتظامیہ کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں. ٹیچر کی فوری گرفتاری کے اور ساتھ ہی ساتھ پولیس کو درخواست جمع کرا دی ہے. آگے بڑھیں گے اور کچھ بات کر لیں گے گجرانوالا کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ گجرانوالا میں پولیس نے کارروائی کر کے کتوں کی لڑائی پر جوا لگانے والے 17 افراد کو حراست میں لے کر ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. دیکھتے ہیں گجرانوالا سے ندیم ڈار کی یہ خصوصی رپورٹ. تھانہ صدر کاموں کی پولیس نے کتوں کی لڑائی پر جوا لگانے والے 17 افراد کو شدید مزاحمت کے بعد گرفتار کر لیا. SP صدر ڈویژن محمد وسیم ڈار کے مطابق کاموکی کے گاؤں پیلو میں کتوں کی لڑائی پر جوا لگا کر مقابلہ کروایا جا رہا تھا, جس پر ASP کاموکی نشیرواں کی زیر نگرانی پولیس کی باری نفری نے ریڈ کر سخت مزاحمت کے بعد 17 ملزمان کو گرفتار کر لیا, جبکہ ان سے اعلیٰ نسل کے 5 کتے اور جو پر لگی رقم برآمد کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. SP صدر ڈویژن محمد وسیم ڈار کا کہنا ہے کہ ڈویژن بھر میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلہ میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. کیمرامین فہد خان کے ساتھ محمد ندیم ڈار, میٹرو 1 نیوز, گجرانوالا. لاہور ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا. گندگی کے ڈھیر کے باعث مسافر پریشان حال ہیں. ریلوے ٹریک پر جگہ جگہ گندا پانی اور بدبو نے مسافروں کا جینا محال کر دیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں لاہور سے میٹرو 1 نیوز کے نمائندے سلمان لقمان سے. جی سلمان لقمان, اپڈیٹ کیجیے گا. آج بالکل اس ٹائم میں موجود ہوں لاہور ریلوے اسٹیشن پر. اگر بات کی جائے ٹرینوں کے حوالے سے تو ٹرینیں کئی ایسی ہیں جو کہ تاخیر کا شکار ہیں, لیکن زیادہ تر ٹرینیں گزشتہ دنوں سے جو ہے ٹائم کے مطابق جو ہے آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں. لیکن شیخ رشید صاحب نے جو ٹرینیں نہیں چلائی ہیں اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کے کرائے بھی کم کیے گئے ہیں, لیکن مسافروں کی کئی ٹرینوں میں توجہ کم ہونے کی وجہ سے ریلوے کو ذرائع کے مطابق خسارہ بھی آج بھگتنا پڑتا ہے. تو اگر صفائی کے حوالے سے بات کی جائے تو اس ٹائم میں موجود ہوں ٹریک نمبر 5 ریلوے اسٹیشن کا پلیٹ نمبر 5 پہ. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ کیا حال ہے کہ گندا پانی جمع ہے. ٹریک پر عبداللطیف کیمرامین دکھا رہا ہوگا کہ گندا پانی یہاں پر جمع ہے جس کو صاف نہیں کیا گیا. وبال گندگی یہاں پر موجود ہے جو کہ جب یہاں پر آتے ہیں پلیٹ فارم کے اوپر جو مسافر ٹرینوں میں بیٹھنے کے لیے تو اس گندگی کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور بڑے بڑے چوہے بھی ٹریکس پر جو ہے گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو انتظامیہ ہے ریلوے انتظامیہ وہ صفائی کے انتظامات مکمل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے, اور اس کے علاوہ جو مسافر انہوں نے شکایات کی ہے کہ
रेलवे इंतजामिया को चाहिए एक तो जो ट्रैक्स हैं इनकी सफाई करवाए, और दूसरा ये कि जो ट्रेनों के अंदर वॉशरूम के अंदर कई मरतबा पानी जो है मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ट्रेनों का निज़ाम बेहतर तो हो रहा है, लेकिन यह है कि कई खामियां अभी भी हैं, जिसकी वजह से जो मुसाफिर हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया सलमान लुकमान, आपने तफसीलन आगाह किया। आगे बढ़ते और अब बात करें शेखुपुरा के हवाले से। आपको बताएं कि शेखुपुरा गुजरांवाला रोड कई अरसे से टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस शहरियों को कई घंटे ट्रैफिक जैम में फंसा रहना पड़ता है। इस हवाले से मजीद अहवाल जानते हैं अमानत चौधरी से। अमानत चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखपुरा गुजरांवाला रोड पे। अगर बात करें इस रोड की, तो इस रोड पे मिनटों का सफर घंटों और घंटों का सफर दिनों में तय हो पाता है। जगह जगह खड्डे टूट फूट की वजह से आए रोज हादसों में इजाफा हो रहा है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस रोड की टूट फूट की वजह से इनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, हुकूमतें तो बहुत बदली हैं, लेकिन इस रोड की हालत ज़ार जो है ना वो आज तक नहीं बदल सकी, जिसकी वजह से लोग जो है हादसा का शिकार होते हैं। जब बारिश हो जाती है तो इसकी हालत जो है मज़ीद बिगड़ जाती है। तो लिहाजा हमारी हुकूमत से यही अपील है, इसको मरम्मत किया जाए ताकि लोग जो हैं वो हादसा का शिकार ना हो सकें। जी, इनका कहना है कि हमारी हुकूमत से यही अपील है कि इस रोड को जल्द से जल्द मरम्मत किया जाए, ताकि जो लोगों को परेशानी और दुश्वारी का सामना करना पड़ा उससे ये बच सकें। जी, बहुत शुक्रिया अमानत चौधरी, आपने तफसीलन आगाह किया। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं कोट अद्दू के हवाले से। आपको बताएं कि कोट अद्दू के इलाके दायरा दीन टाउन कमेटी में कई दिन से कचरा ना उठाने और इलाके में ताफुन से बीमारियां फैलने के खिलाफ इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज किया गया। हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद याकूब से। मोहम्मद याकूब, अपडेट कीजिएगा। और इस वक्त हम तहसील कोटदू के नवाई इलाका शहर दारुद्दीन पनाह में मौजूद हैं। मेरे साथ लोगों ने काफ़ी जो है ना एहतजाज किया है। इनका कहना है कि हमने कई बार एहतजाज भी किया है और जो यहाँ पे टाउन कमेटी है उनको भी हमने कई बार आगाह किया, और एसी साहब जो कोटदू हैं उनको भी हमने कई बार एहतजाज की है। इनका एहतजाज ये है, इनका ये कहना है कि यहाँ के का जो शहर का कूड़ा क्रिकेट है जितना भी है, तो अपने मुर्दार जानवर भी हैं वो भी इसी बस्ती में आकर डाल देते हैं। बहुत बड़ी बस्ती पर यह आबादी मुश्तमिल है। यहाँ पर आप पीछे की तरफ देख सकते हैं तो यहाँ पर जो है ना बड़े जो है ना गंदगी के पहाड़ नुमा नजर आ रहे हैं। तो इनका कहना है बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत ही ज्यादा इंतहाई बीमारी है, बहुत बड़ी जो है ना बीमारी आ चुकी है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में। जो आप सुन रहे हैं कि कोरोना वायरस के हवाले से भी, तो इन लोगों का ये कहना है कि मजीद हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो मजीद मेरे साथ अहले इलाका मौजूद है, मजीद मैं उनसे जानता हूँ। जी बताइए क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम। हम सबसे पहले हम मेट्रो वन का शुक्रिया अदा करते हैं जिसकी टीम हमारे पास मौके पे पहुंची है। कि आप देख सकते हैं कि कितना कूड़ा करके का ढेर लगा हुआ है कि इस पूरे शहर दारुद्दीन पनाह का कूड़ा करके एक ही आबादी के अंदर आके डाल दिया जाता है। हमने कई दफ़ा इनको दरख्वास्त भी दिया टाउन कमेटी वाले को, लेकिन वो इस पर अमल दरामद नहीं करते। जैसा कि आपको मालूम है कि मुर्दा जानवर यहाँ पे फेंके जाते हैं और सारे पूरे मोहल्ले के अंदर बदबू होती है। कई दफ़ा हमने इनको मना भी किया, लेकिन वो बाद का फिर भी जो है ना असर रसूख उनके ऊपर बंदूक का हाथ है, जिसकी वजह से यहाँ पे कूड़ा करकट डाला जाता है। वो कहते हैं आप हमारा क्या करोगे, हम यहीं डालेंगे। आप देख भी सकते हैं कितनी बड़ी आबादी है, यहाँ पे कूड़ा करकट डाला जाता है। हम जी जैसा कि आपने सुना है इनका ये कहना है कि हमने कई बार टाउन कमेटी को जाकर भी कहा है, तो यहाँ पर जितने भी मुर्दार जानवर होते हैं, कुत्ता जानवर, अपना गधा जो भी होते हैं वो यहाँ पर आकर डाल देते हैं। इसके अलावा मैं जो है ना साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ, इस आबादी के साथ जो है ना ईंट पकाने वाला भट्ठा भी मौजूद है जिसके अंदर टायर भी जलाए जाते हैं। और तहसील कोटदू के तकरीबन सैकड़ों इसी तरह ईंट पकाने वाले भट्ठे मौजूद हैं जो यहाँ पर अपने बीमारियाँ फैल रही हैं। तो काफ़ी लोग यहाँ पर सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि कई बार हम अपना टाउन कमेटी के पास भी शिकायत लेकर गए हैं तो उन्होंने हमारी एक ना सुनी। जी अहले इलाका सरापे एहतजाज हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद याकूब, आपने तफसीलन आगाह किया। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात कर लेंगे हब के हवाले से। आपको बताएं कि हब में बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ताउन से लसबेला डिस्ट्रिक्ट गेम्स के मुख्तलिफ ग्राउंड्स में क्रिकेट, फुटबॉल समेत जंपिंग और रनिंग के मुकाबले जारी हैं।
हब में यौम पाकिस्तान के सिलसिले में जाम मीर गुलाम कादिर स्टेडियम में माजूर खिलाड़ियों का क्रिकेट मैच खेला गया। मैच में लसबेला भर से माजूर खिलाड़ियों ने शिरकत करके न सिर्फ अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया बल्कि मुआशरे को अपनी मौजूदगी का भी एहसास दिलाया कि वो किसी भी लिहाज से आम इंसानों से कमतर नहीं है। बेहतरीन इंतजाम करने पर खुसूसी अफराद की स्पेशल पर्सनस ऑर्गेनाइजेशन के जिले कोऑर्डिनेटर जफर अली बलोच ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत की काविशों को सराहते हुए ऐसे इवेंट से खिलाड़ियों को अपनी कारकर्दगी दिखाने का मौका मिलता है। स्पोर्ट्स ऑफिसर खुदा बख्श बलोच ने मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी कोशिश है पूरे बलूचिस्तान से बासलाहियत खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। आज का जो डिसेबल मैच है वो स्पेशली वज़ीर आला बलूचिस्तान, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मीर इमरान गिचकी और डीजी स्पोर्ट्स मीर दुर्रा बलोच और हमारे मुशीर खेल जनाब अब्दुल खालिक अज़हरा साहब की जो विजन है स्पोर्ट्स प्रमोटिंग, उन्होंने स्पोर्ट्स प्रमोटिंग के साथ साथ स्पेशल पर्सन को भी उनके अपने साथ इस विजन में रखा है और पूरे बलूचिस्तान में तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में डिसेबल्स के मैचेस हो रहे हैं, कहीं पर क्रिकेट मैचेस हैं, कहीं पर कुछ और उनकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो आज का जो यहाँ लसबेला में डिसेबल का मैच है वो एक पैगाम देना था कि स्पेशल पर्सन मुआशरे का एक अहम फर्द है। बादशाह फुटबॉल का फाइनल मैच भी खेला गया जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वाइस चेयरमैन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हब लाला यूसुफ बलोच ने बेहतरीन खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। कैमरा टीम के साथ शाहिद जहरी, मेट्रो वन न्यूज, हब लसबेला। अब रुक करेंगे सस्सी के आबाई शहर का। आपको बताएं कि मारूफ रोमानवी दास्तान सस्सी पन्नू की मरकजी किरदार सस्सी का आबाई शहर खस्ताहाली का शिकार है। साथ ही आपको बताएं कि सैकड़ों बरस पुरानी इमारतें आज भी फन तामीर में अपनी मिसाल आप हैं। मारूफ लोक रोमानवी दास्तान सस्सी पन्नू की मरकजी किरदार सस्सी का जन्म रहीमर खान के तारीखी कस्बा भट्टावान में हुआ था। भट्टावान का शुमार पाकिस्तान के कदीम शहरों में होता है जो कि दरिया सिंध के किनारे आबाद थे और दरिया के रास्ते यहाँ पर तजारत और आमदोरफ्त की सरगर्मियाँ होती थीं। मेरी तो यहाँ आके आंखें खुल गई हैं। भट्टावान में आके ऐसा तारीखी शहर मैंने नहीं देखा जहाँ पे इतनी कद्दावर बिल्डिंगें और तारीखी विरसा जो हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से ये तबाह बर्बाद हो गया। सस्सी का ये जो शहर है ये बहुत मुतारफ है लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पे किसी हुकूमत ने भी तवज्जो नहीं दी। सस्सी की जाए पैदाश और वो कुआं आज भी मौजूद है जहाँ सस्सी ने अपना बचपन गुजारा। भट्टावान में जा बजा पुरानी इमारतें नजर आती हैं जिनका तर्ज तमीर बताता है कि भट्टावान अपने वक्त में जदीद तरीन शहर रहा है। सस्सी की जाए पैदाइश वाला ये शहर अब जमाने की बेरुखी का शिकार है। यहाँ पर आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी एक ख्वाब ही है। सीवरेज सिस्टम भी सदियों पुराना राइज है। पानी गली मोहल्लों और बाजारों से होता हुआ शहर के बाहर एक प्लाट में जा गिरता है जो कि मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन रहा है। मोहसिन खालिद, मेट्रो वन न्यूज, रहीमर खान। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात कर लेंगे कोट अद्दू के हवाले से। आपको बताएं कि मिट्टी के बर्तन वैसे तो सदियों से चलते आ रहे हैं मगर कोट अद्दू के हवाले से बात करें तो वहां के कुम्हार हुकूमती सरपरस्ती के मुंतजर नजर आते हैं। के बर्तन तो सदियों से चले आ रहे हैं मगर पंजाब के कदीम शहर कोट अद्दू की सरजमी पर मिट्टी के बर्तन आज भी अपनी मिसाल आप हैं। कोट अद्दू के कुम्हार चिकनाई मिट्टी पर अपने हाथों का जादू चलाकर मिट्टी को ऐसी शक्ल दे देते हैं कि देखने वाले देखते रह जाते हैं। अच्छा जराना ये साफ सुथरा काम है, बेहतरीन है। जराना इन्हें जराना साहब को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मुशक्कत है। इन्हें साहब को सिला नहीं मिलता। बर्तन बनाने वाले ये कुम्हार कहते हैं कि अगर हुकूमत हुनर की कदर के साथ साथ हमारी सरपरस्ती करे तो हम इसी मिट्टी के बर्तन में पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर सकते। इन्हें कोई बीमारी को नहीं, कोई बिल्कुल साफ बर्तन है। इन्हें जेर से खाओ उन्हें सवाब है, पीओ डाले तो कारोबार न पे हजूर पाक तो वे यानी कि ये मिट्टी वाले बर्तन है।
कोटद्दू के कुम्हार कहते हैं मट्टी के बर्तन इस्तेमाल करना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और सियत बख्श भी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद याकूब, मेट्रो 1 न्यूज, कोटद्दू। अब रुख करेंगे पहलवानों के शहर गुजरांवाला का, जहां पर पहलवान कबाब आवाम की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। गुजरांवाला के मुख्तलिफ मकामात पर ये कबाब तैयार किया जाता है। इस कबाब को दो मुख्तलिफ तरीकों से तैयार किया जाता है, एक तंदूरी कबाब और दूसरा रवायती अंदाज से सीख पर लगाकर कोयलों की हल्की आग पर बनाया जाता है। इस पहलवान कबाब को बनाने वाले इसके जायके और म्यार में अपना सानी नहीं रखते। चिकन है प्योर, मसाले वगैरह पाई देने, प्याज वगैरह ते चिकन को आप बड़ी दूरों लोग खान आते हैं। गुजरात तो तकरीबन हर कोने तो आते हैं लोग। पहलवानों के शहर का ये पहलवान कबाब जो कि अपनी मुनफरिद जिसामत के साथ साथ गजाइत से भरपूर कबाब है। 300 ग्राम और 1.5 फीट के साइज के साथ ये कबाब जो एक बार खा लेता है इसके जायके को नहीं भूलता। लंबाई और चौड़ाई में अपनी मुनफरिद पहचान रखने वाला ये कबाब जायके में ऐसा है कि इसे खाना शुरू करो तो जी चाहता है कि खाते ही जाओ। गुजरांवाला जिहड़ा है उंजी खाण पीण वाला शहर है, लिहाजा टिक्के कबाब सानू बहुत पसंद ने। जो कबाब है इसका साइज ही जो है वो पहलवानों वाला साइज है और माशाल्लाह बड़े दोस्त इधर आते हैं, बड़े दूर से आके पसंद करते हैं। ये गुजरांवाला के समझे कि एक पहचान बना हुआ है ये कबाब जो है। कबाब को प्लेट में डालने से पहले 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। खाने वालों के शौक और म्यार ने इसे गुजरांवाला के शहरियों की हर दिल अजीज डिश बना दिया है। वैसे तो सीख कबाब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तैयार किए जाते हैं, लेकिन पहलवानों के शहर में तैयार होने वाला ये पहलवान कबाब जिसकी खुशबू और जायका एक अलग ही म्यार रखते हैं। कैमरामैन आसिफ भट्ट के साथ अजमन नकवी, मेट्रो 1 न्यूज, गुजरांवाला। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हेडलाइंस के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।